did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today, this has been proved by our students, by our young people. And they have stood there regardless, everywhere, not just in Delhi, across India. They have not cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it, anything. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. And this is their victory. I give them my compliments. We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he's been raising this issue. So I think that I want to compliment him as well, because he has raised this issue and he has got the rest of us in the party, the NSUI, the Youth Congress, to not only support the students, but to create a movement all across the country for the rights of students, for the reform of our education system. So now, I think this is the beginning, but I'm really, really happy. I got a little bit emotional when I heard this news, because many times in these last 10 or 12 years, I've thought to myself, when are our young people going to wake up? Look what is being done to our country. RSS is filling the entire educational system. Every post, every vice chancellor, the ideology of our forefathers has been broken down. Force is being used against young people, against anybody who raises their voice and protest. So today I'm a very happy person, because the youth of our country has spoken and nobody can ever dare to silence their voice. तो लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई है। पहचान अपनी मेहनत से और उनका परिचय और जो सम्मान उन्होंने पाया, शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना लोकप्रिय विधायक कोई नहीं रहा होगा, जिसका सम्मान हर वर्ग के लोग करते थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी समाज के लोग रहे होंगे, उन्होंने हमेशा सम्मान किया। उनके बीच में विधायक जब भी गए होंगे, विधायक जी, उन्होंने कभी भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। एक तरीके से सौहार्द कैसे बने रहे, भाईचारा कैसे बने रहे, आपस में प्रेम कैसे बढ़े, हमारे जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, हिंदुस्तानियत को कैसे पहचान दें। तो अखिलेश यादव को भी आप सुन रहे हैं। तो छात्रों की जीत है, जिंजीज की जीत है, इस बात को सभी कहते हुए नजर आ रहे हैं और ये एक संदेश भी है। और ये जंतर मंतर से जश्न की तस्वीरें। तो तस्वीरें अब देश के अलग अलग हिस्सों से भी सामने आ रही हैं। चेन्नई में ये बताया जा रहा है कि ये जश्न मनाया गया था, जहाँ की तस्वीरें अभी आप देख रहे थे। तो हालांकि अब एक जाहिर है, क्योंकि स्टूडेंट का ये प्रोटेस्ट था और स्टूडेंट्स इसको लेकर के सड़कों पर थे, तो इसलिए आज जो वो डिमांड कर रहे थे उसको सरकार ने माना है। तो आज वहाँ पर एक अलग ऊर्जा, एक अलग उत्साह आप देख पा रहे हैं। लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो सेट करने की बात यहाँ से कही गई है, वो कैसे हो पाएगी, ये प्रश्न अभी भी है, क्योंकि रेजिग्नेशन से क्या समाधान निकलेगा, यानी कि इस्तीफे से क्या आप समाधान की ओर बढ़ पाएंगे, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये बरकरार रहेगा तब तक जब तक जो एग्जामिनेशन है वो बिना किसी फियर के और बिना आप कह सकते हैं पेपर लीक के कंडक्ट नहीं होते। और अगर ये हो पाता है तो इसको फिर एक और बड़ी जीत के तौर पर आप देखेंगे। और फिर ये जो आज सीजेपी की जीत हुई है, इसको भी याद जरूर रखा जाएगा। हाँ, आज इतनी सफलता जरूर है क्योंकि जो डिमांड्स इस आंदोलन के दौरान की गई थी, आज उस आंदोलन के इस डिमांड को सरकार ने माना है।
ज्योति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ज्योति, लगातार हम लोग सुन रहे हैं, चूंकि अब तो रिएक्शंस जो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अपोजिशन में हैं वो ये कह रहे हैं कि छात्रों की एक बड़ी जीत है। छात्र ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमने जो डिमांड्स की उसको सरकार ने माना, लेकिन प्रश्न अभी भी ये है कि इससे अकाउंटेबिलिटी सेट कैसे हो पाएगी, ये प्रश्न तो अभी भी सबके जहन में है। और क्या आगे, जो मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर रहा था कि अब तो ये रास्ता एक तरीके से सरकार ने दिखा दिया है ना कि अगर आप किसी बात पर असहमति व्यक्त करते हैं तो आपको बस लोगों को एकत्रित करना है और फिर सरकार उस बात को सुनकर के आप जो चाहते हैं उस मुद्दे पर आ सकती है। तो क्या वो एक मार्ग प्रशस्त हो गया है, वो एक रास्ता दिखा दिया सरकार ने? देखिए आयुष, दोनों ही बातें हैं, दोनों ही पहलू हैं। एक तो कि सरकार दबाव के हिसाब से अगर काम करेगी तो कैसे काम कर पाएगी, दूसरा ये भी कि लोकतंत्र में अगर लोगों की नहीं सुनी जाएगी तो फिर लोकतंत्र के मायने क्या हैं। और पब्लिक सेंटिमेंट्स के हिसाब से सरकार को चलना पड़ता है। बहुत बार सरकारें चली हैं, बहुत बार इस्तीफे हुए हैं। ये बीजेपी का स्टाइल रहा है कि बीजेपी अपने नेताओं को किसी दबाव में इस्तीफा लेना या इस्तीफा देना या कोई एक्शन, ये तमाम चीजें हमने नहीं देखी। ज्यादा से ज्यादा हम ये देखते हैं किसी पर गंभीर आरोप लगे तो टिकट्स कई बार कटे हैं, लेकिन इस तरह से इस्तीफा लिया जाना या इस्तीफा दिया जाना, इसे मैं कहूंगी, खबरें हैं कि अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से धर्मेंद्र प्रधान की ओर से इस्तीफा दिया गया है। तो ठीक है, लोकतंत्र में अगर ऐसा भी होता है, वो भी तब जबकि जेनजी जिनको बहुत ज्यादा, ठीक है हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की कितनी समझ है नहीं है, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। इनका जो स्टाइल था, जो स्लोगन्स थी, जो बातें थी, जो होर्डिंग्स पर नहीं, तो क्या ये एसेस कर लिया सरकार ने कि देखिए जेनजीज को उनके मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट करना वो हो नहीं पाएगा? मतलब आप कोई भी कोशिश कर लीजिए, जो डिमांड्स लेकर के वो बैठे हैं आपको उसको पूरा ही करना पड़ेगा, ये भी एक संदेश है इसके पीछे। बिल्कुल ये संदेश है। शुरू से कहा जा रहा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में हम नहीं मानेंगे। इनफैक्ट मीटिंग्स के लिए भी कहा जा रहा था कि आप बार बार बैठक बुलाते रहें, अगर आप प्रधान के इस्तीफे पर नहीं मानेंगे तो कोई औचित्य ही नहीं है। तो देखिए सारी बातें ही मनवा ली गई हैं और विपक्ष इसमें भले ही, ठीक है अभी हमारे साथ गीता भुक्कल जी भी जुड़ी थी, दूसरे नेता भी ये कहेंगे कि राहुल गांधी ने भी ये किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया, लेकिन विपक्ष की इसमें कोई भूमिका बिल्कुल नहीं रही है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी भी इसे लीड कर रही होती तो इसके कामयाब होने के बहुत कम चांस रह जाते। ठीक है, युवा थे और बहुत सारे, तो एक छोटा सा सवाल मैं और पूछना, ज्योति इसी से जुड़ा हुआ है मेरा, क्या कोई पॉलिटिकल स्कोर आपको लग रहा है पॉलिटिकल पार्टीज इससे गेन कर पाएंगी? क्योंकि विपक्ष, जाहिर है कि जब इस तरह के एंटी नैरेटिव्स होते हैं कि गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट जो नैरेटिव है, अगर उसमें जीत मिले किसी भी मूवमेंट को, तो पॉलिटिकल पार्टी ये कोशिश करती है कि उनके खाते में कुछ आ जाए या लोग उनके साथ कनेक्ट हों। क्या वो उधर शिफ्ट होगा या कोई मिलेगा, कोई ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे विपक्ष को, इसका कोई लाभ होगा राजनीति में? ये हो सकता था, लेकिन ये होने से पहले ही बीजेपी ने, इसे मैं कह रही हूँ ना, बड़ा स्मार्टली इसको हैंडल किया है। ठीक है 4-5 दिन हालात बिगड़े हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जेनजी वाले स्टाइल में हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, सारी बातें उनकी ओर से कही गई। जिस तरह से वो उनकी ओर से वीडियो शेयर किए गए, अपने मंत्रियों से भी कह दिया गया कि साथ ही बैक टू बैक मीटिंग्स हुई, देर रात जाकर सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाया गया, मिडनाइट वीडियो पीएम की ओर से शेयर किए गए। तो बीजेपी ने बड़ी गंभीरता से इसे लिया है। बीजेपी बिल्कुल कोई विकल्प दूसरी पार्टियों के सामने भी नहीं छोड़ना चाहती कि यूथ उनके साथ जुड़े या पूरा हाईजैक कर लिया जाए धरना या प्रोटेस्ट। और दूसरा, चुनाव भी होने हैं आयुष, दूसरे कई राज्यों की हम बात करें, यूपी में चुनाव है, बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है। उधर पंजाब में भी बीजेपी अपनी जमीन तलाशने में लगी है। पंजाब से सिख भी आ रहे थे, निहंग भी आ रहे थे, किसान भी उठकर आने लगे थे। तो सारा नफा नुकसान देखा जाता है। और जो न्यूट्रल युवा हैं, छात्र हैं, अगर वो सड़कों पर उतरे हैं, ठीक है उनका तरीका ठीक गलत हो सकता है, लेकिन प्रेशर बनाने में वो कामयाब जरूर रहे हैं। और बीजेपी ने भी मानसून सत्र को देखते हुए भी और पिछला जो संसद कूच का प्रयास था, अब भी अगर ये करते नेक्स्ट वीक इन पर लाठीचार्ज एक्शन होता तो उसमें भी जाहिर है बहुत सवाल उठते, उसके बाद और ज्यादा भीड़ हो सकती थी। अभी वीकेंड में भी हम कल की बात करें, संडे की बात करें, या आज भी बहुत ज्यादा लोग आ सकते थे, यूथ आ सकता था। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं सरकार ने इसे सुलझाने का प्रयास किया है। कि ठीक है आपको जो गुस्सा निकालना है